کہ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ کے کسی گاؤں میں پیدا ہوں گے، اور پھر 40 سال کی عمر ہوگی تو وہ مکہ مکرمہ آئیں گے، اور یہ امام مہدی رضی اللہ عنہ شریعت محمدی کی تبلیغ کریں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں شیعوں کا، رافضیوں کا جو امام ہے، ان کی ولادت جو ہے حق الیقین کے مطابق 255 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد 260 میں امام حسن عسکری رحمہ اللہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ حضرت محمد صاحب جو ہیں یہ غار میں چھپے ہیں۔ وہ غار اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں کوئی بکری کا بچہ بھی نہیں جا سکتا، چاہے کہ کوئی انسان کا بچہ چلا جائے، اور 1200 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے، آج تک وہ باہر نہیں آئے۔ آئیں گے بعد میں، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو بالکل ننگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و سامعین، ایک ضروری اور اہم پیغام آپ کو دینا ہے اور ایک ضروری وضاحت کرنا ہے۔ پچھلے دنوں میں جب سے گلگت بلتستان میں باقر حسینی نام کا ایک انتہائی ملعون رافضی نے صحابہ کرام، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں انتہائی نازیبہ الفاظ میں گستاخی کی، اس کے بعد یہ پورا علاقہ گلگت بلتستان انتہائی قسم کے مظاہرات اور انتہائی قسم کے اختلافات کا شکار ہے۔ اس دوران اہل سنت والجماعت کے امیر جناب قاضی نثار احمد صاحب نے گلگت کے مظاہرے میں 12واں امام محمد بن حسن عسکری کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے، اور وہ بھی ایسے کوئی گالی، کوئی غلط بات نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو برا نہیں کہوں گا، البتہ یہ کہا کہ وہ جعلی ہے۔ اس پر پوری دنیا شیعت، خاص طور پر بلتستان کے شیعہ، جنہوں نے پہلے بھی بہت ہی غلط الفاظ میں، سنگین الفاظ میں اللہ کے محبوب صحابہ کرام کی شان میں انتہائی قسم کی گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں نے دوبارہ اس طرح کے بڑے بڑے مظاہرے کیے اور اس میں قاضی صاحب کو نشانہ بنا کر بڑے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے اور انتہائی بدتمیزی کی۔ یہ تو چلو کریں گے، یہ دو فریق کے مد مقابل، لیکن کچھ شیعوں کے سپورٹڈ علماء، فنڈڈ علماء، جن کی شکل و صورت تو مولویوں جیسی ہے، کراکلی پہنا ہوا ہے، ایک دجال قسم کا شخص جس کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی، اس بدبخت کو جب صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بازی ہو رہی تھی، جب صحابہ کے خلاف بدزبانی ہو رہی تھی، گالی گلوچ ہو رہی تھی، اس وقت یہ کہاں مرا ہوا تھا، یہ بدبخت، یہ مردار، یہ نیم رافضی یا اندر سے رافضی ہے، باہر سے شکل اس نے اہل سنت کا اپنایا ہوا ہے۔ اس بدبخت نے انتہائی غلط قسم کے الفاظ حضرت قاضی صاحب کے بارے میں استعمال کیے ہیں، اتنے غلیظ اور اتنے گندے ہیں کہ میں وہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا، لیکن یہ الفاظ اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ خبیث النفس اور یہ انتہائی بدبخت آدمی یہ خود اندر سے کیا ہے، اس کا کسی الفاظ سے تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ اس نے قاضی صاحب کے بارے میں کہے ہیں، جو کہ ولی ابن ولی ہیں، قاضی ابن قاضی ہیں، عالم ابن عالم ہیں، لاکھوں لوگوں کے رہنما ہیں، ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہیں، تو در حقیقت یہ الفاظ اسی کی اپنی تعبیر اور تشریح ہے کہ جس نے قاضی صاحب کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں اس کی اپنی تشریح یہ ہے کہ وہ خود ایسا ہے۔ بہرحال اتنے الفاظ کافی ہیں اس کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور اس طرح کے فنڈڈ علماء یا ناسمجھ علماء یا شیعوں سے محبت اور عقیدت رکھنے والے علماء بھی میں ان کو نہیں کہہ سکتا، جن کو صحابہ پر
भौंकने वालों पर तो गैरत नहीं आती है। सहाबा के खिलाफ बकवास जब की जा रही थी उस वक्त उनकी ईमानी गैरत नहीं जागी, और जब यहाँ तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। काजी साहब ने ये कहा है कि मैं बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उनका 12वां इमाम जो है वो जाली है, सिर्फ ये अल्फाज कहे हैं। इस पर उनको गैरत आई, तहश आ गया, और इसके बारे में वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं। और काजी साहब के लिए वो तान और तशनीह के अल्फाज, वो गिलाजत, वो गालियां जो आम आदमी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, अब उनकी ईमानी गैरत जागी है। बहरहाल इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि हजरत इमाम मेहदी, जिसका अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक जो तारुफ है, जो अहादीस में आया है, जो आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मजमुआ ये है कि उनका नाम, उसका खुलासा ये है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमिना होगा, और वो मदीना मुनव्वरा के किसी गांव में पैदा होंगे, और फिर 40 साल की उम्र होगी तो वो मक्का मुकर्रमा आएंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिमी के दरमियान जाहिर होंगे, और लोग उनके हाथ पे बैत करेंगे, और ये इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु शरीयत मोहम्मदी की तबलीग करेंगे, और उस वक्त मुसलमानों के हालात सख्त होंगे, फिर इनके हाथ पे लोग बैत करेंगे, फिर जिहाद करेंगे, आगे तफसीलात है। जबकि इसके मुकाबले में शियों का, राफिजियों का जो इमाम है, वो बहरहाल उनका अकीदा है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी विलादत जो है उनकी किताबों के मुताबिक, हक़ुल यकीन के मुताबिक 255 हिजरी में उनकी विलादत हुई है। उसके बाद 260 में इमाम हसन अस्करी रहमहुल्लाह शहीद हुए हैं। तो उसके बाद ये हजरत मोहम्मद साहब जो हैं ये गार में छुपे हैं, और ये सामर्रा के एक गार में, सामर्रा मकाम है इराक के अंदर एक मकाम है, उस सामर्रा के मकाम में एक गार के अंदर ये चले गए हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर यानी वो गार इतनी छोटी है कि उसमें कोई बकरी का बच्चा भी नहीं जा सकता, चिजाए कि कोई इंसान का बच्चा चला जाए, और 1200 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, आज तक वो बाहर नहीं आए हैं। अब शियों का अकीदा है, हक़ुल यकीन के अंदर ये उनकी रिवायतें मौजूद है कि वो आएंगे बाद में। अच्छा, अब उनका कंसेप्ट क्या है कि उनका नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम हसन अस्करी है, वालिदा का नाम नरगिस खातून है, और जब वो जाहिर होंगे तो जाहिर होने के बाद, अच्छा जाहिर होंगे तो बिल्कुल नंगे होंगे। अब देखिए ये हक़ुल यकीन के अंदर रिवायत मौजूद है। उसके बाद नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ पे बैत करेंगे, फिर हजरत अली बैत करेंगे इसी नंगी हालत में। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अली की इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? इमाम मेहदी तो आपके मुक्तदी होकर आएंगे, लेकिन ये यहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली का उनके हाथ पे बैत करा रहे। उसके बाद इनकी किताब के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये इमाम मेहदी साहब जो हैं सुन्नी कुफ्फार उलमा को कत्ल करेंगे, यानी इसका पहला काम ये होगा। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। इसीलिए तो कहा जाता है यार अगर कोई चीज गढ़ना भी हो तो अकल का से गढ़े, कोई ढंग की चीज गढ़े। 1200 साल से ऊपर हुआ है, अभी तक कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? न उनके लिए खाने पीने का अंदर कोई बंदोबस्त है। यानी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और इरशाद के मुताबिक आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70 व कलीलन मा यतजावज़ून, मेरी उम्मत की औसत उम्र 60 और 70 के दरमियान होगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो इससे आगे जाएंगे, लेकिन 1200 साल का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बहरहाल जो भी है उनका अकीदा है, हम उसका एहतराम करते हैं, उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन हम इसकी भी इजाज़त नहीं देते हैं कि इस तरह के अकीदे गढ़ लिए जाएं, और अगर उस पर कोई बात हो तो उनको गैज़ो ग़ज़ब आग लगे, उनको तकलीफ हो। जब तुमने अकीदे गढ़े हैं इस तरह के तो बर्दाश्त भी करो। तुम हमारे सहाबा, किबार सहाबा, हजरत उमर को बकवास करो, गाली दो, हजरत मुआविया को गाली दो, हजरत अबू सुफियान को गाली दो। ये वो सहाबा हैं जिनको अल्लाह की तरफ से
बशारतें आई हैं और तुम उनके बारे में बकवास करो, बकवास दर बकवास करो। किताबें तुम्हारी भरी पड़ी हैं। तुम्हारे ये मुल्लू जो हैं, अभी स्कर्दू में क्या हुआ, बाकिर हुसैनी मलऊन ने पहले बकवास की, उसके बाद एक शराफत मलऊन इब्ने मलऊन ने फिर बकवास की। उस वक्त तुम्हारा इंसाफ कहां जाता है? उस वक्त तुम्हारा ज़मीर कहां मरता है? याद क्यों नहीं आता है कि किसी के बड़ों को बुरा कहना इंतहाई गलत काम है। हम तो अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात और हिदायत के मुताबिक चलते हैं। तुम्हें बुरा नहीं कहा है, लेकिन इस छोटी सी बात पर तुम्हें आग लगी है, तकलीफ हुई है। तो हम तो सहाबा पर जान निसार करने वाले हैं, ये याद रखें। सहाबा की तहफ़्फ़ुज़ और उनके नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाना हम ईमानी गैरत समझते हैं और इसको अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ कहे बगैर तकलीफें होती हैं, जुलूस करते हो, मुजाहरे करते हो। तुमसे हमारा गिला नहीं है, गिला इन बगैरतों से है जो सुन्नियत के लिबादे में राफिजी हैं, सुन्नियत के लिबादे में शिया फंडिड हैं, सुन्नियत के लिबादे में शियों का खाया हुआ या उनकी औलाद है। बहरहाल मुझे बहुत तकलीफ हुई और इंशाअल्लाह इससे ज्यादा तकलीफ इस बदबख्त को होगी जिसने काजी निसार साहब को गालियां दी है और उनके खानदान पर बकवास की है। बहरहाल अहले सुन्नत भी इस बात को नोट करें, चाहें तो आप मुताला करें, खुद पढ़ें किताबें कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु जो सुन्नियों के यहाँ भी इमाम है, लेकिन इनके और इनके इमाम में बहुत फ़र्क है। अहादीस में जो इमाम मेहदी आएंगे वो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया किताबों के हवाले से, और शियों के जो इमाम मेहदी हैं उनके बिल्कुल सारी मालूमात अलग है। तो बहरहाल इख्तलाफ तो है, लेकिन लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर खड़े रहो, कायम रहो, लेकिन सहाबा के बारे में कभी कुछ गलत कहने की सोचना भी मत। हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, जो हुआ है उस पर हमें हमारा बिल्कुल ये हुकूमत से भी गिला है और हुकूमत से मुतालबा है कि इन बदबख्तों को पकड़कर बाकिर हुसैनी और शराफत अली जैसे बदबख्तों को पकड़ कर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي